Hello, one and all. Today, on the occasion of World Diabetes Day, we are live with Dr. Ashok Jingan, Senior Director at the Center of Diabetes, Thyroid and Obesity at BLK Max Super Speciality Hospital, Delhi. Hello, Doctor. Hello. Today, we will have question and answers in regard to diabetes. And my first question to you, sir, is what exactly is diabetes and what are its various types? Diabetes is a metabolic disease. It is a disease where insulin hormone, which controls the blood sugar, is either deficient or is not acting properly, or it is available in a very small doses. And based on that, we divide the diabetes into two categories, and that's type 1 diabetes, where there is no insulin production, either because of some antibody reaction, the cells where from the insulin is produced is not producing insulins, or there is a second type which is called as the type 2 diabetes. There's 90% patients are of type 2 diabetes, and here the defect lies with insulin, either it's a deficient, it's a less amount, or it is not working. That's called as the insulin resistance. So basically, friends, the diabetes is a disease of a insulin hormone which controls the blood sugar, and when this is deficient, the blood sugar levels rises, and these raised blood sugar levels produce all the symptoms of diabetes. Thank you, sir. Sir, why are the cases of diabetes increasing in our country? You are very right. There is right now we are about 77 million patients of diabetes, and this number is gradually increasing. The reason being the change in lifestyle. The people's lifestyle have changed, sedentary lifestyle, dietary habits have changed, and super added to that there is a stressful life. I always tell all the patients that always remember the 7 sins of modern life, and then these 7 S or sins are: number 1 is a sedentary lifestyle. That means nobody is going for a regular exercise. Number 2 is a stress. Stress definitely increases the stress hormones, which increases the blood sugar levels. Number 3 is a sleep. There is at least 8 hours of sleep is very important, and when there is a decrease in the hours of the sleep, I mean to say, if you are not able to sleep for 8 hours, this definitely increases the stress level, and this can further increase the chances of blood sugar. Then of course the excessive salt in the diet, excessive sugar in your regular meals. Then of course the another 2 S are smoking and the spirits, that means alcoholic. So if you avoid all these, or if you cannot avoid, at least you should have a moderation of all these things, then you can avoid all these diseases which are classified as a lifestyle diseases. Thank you, sir. And sir, is it hereditary or is it genetic? I think that's a wonderful question, because diabetes is always having a genetic background. It gets precipitated by the environmental factors. So that means if both the grandparents are diabetic, and if your parents are also diabetic, the chances of having a diabetes is 70%. If both the parents are diabetic, then chances are about 49 to 50%. If your one parent is a diabetic, chances will be 25 to 27%. So I think your question definitely relates to the genetic background, and I fully agree with that the diabetes is always having a genetic background, but gets precipitated because of environmental factors. That means your lifestyle has changed, your weight has gone up, you have become more overweight or obese, and your regular dietary habits have changed. This leads to precipitation of a diabetes. Thank you, sir. Sir, what are its early symptoms? डायबिटीज़ के सिम्टम्स जो होते हैं उसमें मेन जो होते हैं, बार बार पेशाब के लिए जाना, प्यास अधिक लगना, भूख अधिक लगना, और उसके साथ साथ वज़न कम होना. ये हमेशा पहले क्लासिकल सिम्टम्स होते थे, लेकिन अब जो लोगों में सिम्टम देखने को मिलते हैं वो है जैसे थकावट. पेशेंट कहता है मुझे शाम को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, मुझे इतनी थकान हो जाती है मैं अपना काम नहीं कर सकता. कोई इन्फेक्शन हो जाए वो ठीक नहीं होती है.
इसके साथ साथ उन लोगों के अंदर जो है ब्लड प्रेशर अगर रहता है, या उनको जो है हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, या कोई और स्किन में जो है बेसिकली उनको जो है खुजली होने लगती है, और ख़ास करके 2 सिम्टम जो पुरुषों में और महिलाओं में देखने को मिलते हैं, वो ये होता है कि उनके गुप्तांगों पे खुजली, और उसी से जब वो अपनी जांच कराने के लिए जाते हैं तब पता लगता है कि ये तो डायबिटीज़ की वजह से है। तो ये डायबिटीज़ के सिम्टम हैं, लेकिन कई बार डायबिटीज़ का कोई सिम्टम नहीं होता, और वो जो है रेगुलर जब आप कोई जांच कराने जाते हैं तब पता लगता है ये तो आपको डायबिटीज़ है, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं साइलेंट किलर और साइलेंट डिजीज़। थैंक यू सर। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का, और क्या किसी तरह के टेस्ट या स्क्रीनिंग से हम डायबिटीज़ को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि किन किन लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना हो सकती है। ये सभी लोग जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है। नंबर 2 वो लोग जो ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार हैं। नंबर 3 वो लोग जिनको यंग एज में ब्लड प्रेशर की या हाई कोलेस्ट्रॉल की या हार्ट की कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, इन सब लोगों में डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे जैसे आपकी उम्र 40 के आसपास होने लगती है तब भी आपके डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक हो जाती है। जब कोई ऐसे जो है, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में अगर आप बात करें तो ख़ास करके महिलाओं के अंदर जब वो गर्भावस्था में होती हैं तब डायबिटीज़ हो जाती है, और जिसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। इन महिलाओं में जब वो डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में दोबारा भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, और इनके बच्चों के अंदर भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब वो लोग हैं, हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं, जिनके अंदर डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। तो अगर हम लोग उस ग्रुप में आते हैं तो फिर हमको अपनी खून की जांच करानी चाहिए, हमको पता लगना चाहिए। अगर जैसे हम लोग सिम्टम्स की बात भी कर रहे थे, अगर वो भी हमारे को पता है कि थोड़े ऐसे कुछ सिम्टम्स हमारे में हैं और हम हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो हमको अपने खून की जांच करानी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ होती है ब्लड शुगर टेस्ट। जो ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं हम लोग, उसमें ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल आदमी के लिए खाली पेट का शुगर कितना है और खाने के 2 घंटे बाद का कितना है। खाली पेट का शुगर, जिसको हम लोग कहते हैं 8 to 10 आवर्स ऑफ ओवरनाइट फास्टिंग, ये 100 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए, और खाना खाने के बाद का 140 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पहले तो ये लिमिट्स ज़्यादा थी, पहले लोग ये कहते थे कि 126 और 180 था, लेकिन ये देखा गया कि जिन लोगों को जो प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन में होते हैं, मतलब जिनके नॉर्मल से थोड़े कम लेकिन उससे थोड़ा नॉर्मल लेवल जो है उसके बिल्कुल नज़दीक अगर आते हैं, तो उन लोगों को हम लोग कहते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन। उन लोगों के अंदर डायबिटीज़ की जटिलताएं ज़्यादा होती हैं। यही देख के ये जो पैरामीटर्स हैं इनको थोड़ा नीचे किया गया, और ये किया गया कि खाली पेट की शुगर 100 मिलीग्राम से नीचे होनी चाहिए, खाना खाने के बाद की 140 से होनी चाहिए, और ये 2 घंटे बाद की होनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये होता है कि इसके बाद एक दूसरा टेस्ट होता है जिससे हम ये लोग पता लगा सकते हैं कि पिछले 3 महीने से ब्लड शुगर कितना रहा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। वो ये बता देता है कि आपके पिछले 3 महीने के शुगर के लेवल्स कितने रहे। नॉर्मल व्यक्ति के 6.5 से नीचे रहने चाहिए, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति है तो 5.7 तक मान के चलते हैं। जो प्री डायबिटीज़ वाले हैं उनका 6.4 तक रहता है, और जिनको डायबिटीज़ होती है उनको 6.5 कहते हैं। और हर आदमी का प्रयास ये होना चाहिए डायबिटीज़ के मरीज़ का कि HbA1c जो लेवल्स हैं उनको 7 के अगर आसपास रखेंगे तो उसकी जटिलताओं से बच सकते हैं। और तीसरा टेस्ट जो है, जैसे कई लोग हम लोग कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जब आपको नहीं होता तो हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज खिला के, या उसके बाद हम 2 घंटे बाद दोबारा कराते हैं, और उससे जब देखते हैं कि कितने शुगर के लेवल्स हैं, इसको कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये मेन टेस्ट है जिनसे पता लगता है कि शुगर आपको है कि नहीं, और अगर है तो कितनी मात्रा में है, पिछले 3 महीने से कंट्रोल में है या नहीं है। इसके साथ साथ बाकी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए हम लोग कहते हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए, उनको अपने कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स की जांच करानी चाहिए, अपना वेट रिकॉर्ड हर बार देखते रहना चाहिए कि आप अपने वेट का जो सीमा है, जो उसके आपके हाइट और वेट के हिसाब से होनी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये सारे अपने मेजरमेंट्स को अगर आप करते हैं तो आप अपने डायबिटीज़ के होते हुए कंट्रोल में भी रख सकते हैं। Thank you, sir. That was really informative. And sir, are there any warning symptoms of high as well as low sugar levels, and what should one do in such cases?
ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उनके अंदर हमेशा उत्सुकता होती है जानने की कि क्या मुझको डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसमें जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अभी प्री डायबिटीज़ का एक ग्रुप होता है, जैसे जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो गई, उन बच्चों को अगर आप देखें, ध्यान से देखेंगे तो उनके गर्दन के पीछे का हिस्सा यहाँ पे होता है, उसमें बहुत ब्लैकनेस आ जाती है और थिकनेस रहती है उसको, और जिसको हम लोग कहते हैं एकेंथोसिस नेग्रिकेंस, मतलब जैसे नीग्रोस की गर्दन की तरह वो होता है वहाँ पे। उनको बहुत सारे मोल्स हो जाते हैं, उनके यहाँ पे जो है सारे बॉडी पे पिगमेंटेशंस बहुत सारा होगा, वेट ज़्यादा होगा, अपना यहाँ का हिस्सा जो है खास करके बगलों में और साइड्स में सारा पिगमेंटेशन की वजह से कलर ब्लैक होगा। ये सभी वो लोग हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक होगी। एक दूसरा ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं पीसीओडी, ये जनरली हमारी यंग गर्ल्स में देखने को मिलता है, जिनके अंदर क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो जाती है ओवरीज के अंदर, जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है और उन लोगों के अंदर भी वजन अधिक हो जाता है, उनको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो आपने कहा कि जो सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम यही है, अगर हम जैसे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है बच्चों में भी डायबिटीज़ देखने को मिल रही है, टाइप 2 डायबिटीज़, तो उनके अंदर सिम्टम यही रहेंगे कि बार बार पेशाब के लिए जाना, वज़न एकदम से कम होना, और अपना जो है प्राइवेट पार्ट्स पे जो है इचिंग हो जाना या खुजली हो जाना और कमज़ोरी, ये मेन सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ मैं जो लोगों को एक चीज़ हमेशा, एक सवाल हमेशा लोग पूछते हैं कि मैं जो ब्लड शुगर कराऊं, क्या मैं घर वाला जो टेस्ट है वो ठीक होता है और जो मैं ब्लड बाज़ार से कराता हूं वो ठीक होता है कि नहीं। दोनों ही शुगर के लेवल्स ठीक होते हैं, एक्सेप्ट कि एक जो है वो कैपिलरी सोर्स होता है, एक वीनस ब्लड होता है। तो जो कैपिलरी वाला होता है वो 15 मिलीग्राम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और जो यहाँ वीनस ब्लड है वो 15 मिलीग्राम कम हो सकता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि जो लैब का टेस्ट है वो सही है और जो ग्लूकोमीटर से टेस्ट है वो सही है, वो सही नहीं है, इस तरह का नहीं है। आप अपना नियमित अगर रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, रेगुलर ब्लड शुगर की जांच करते हैं, तो आप अपने डायबिटीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल में भी रख सकते हैं और एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। थैंक यू सर। और सर, कुछ लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ के इलाज की उनको क्या ज़रूरत है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या डायबिटीज़ का इलाज बहुत ज़रूरी है, और क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर हम इलाज ना करवाएं तो? नहीं, बहुत ही सब लोग जानना भी चाहते हैं। देखिए, अगर शुगर के लेवल परसिस्टेंटली ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो ये शरीर के हर हिस्से को अफेक्ट करते हैं। चाहे हम बात करें, आँखों की बात करें, तो ये जो है आँखों के अंदर पर्दे पे असर करते हैं। आँखों में जो ग्लासेस का आपका नंबर है वो बार बार बदलता जाता है, और इन लोगों को कैटरेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रेटिनोपैथी हो जाती है, जिससे ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हो जाते हैं। कई लोगों को 2 से 5 गुना ज़्यादा स्ट्रोक्स होने के, या पैरालिसिस, या जिसको हम लोग कहते हैं कि जो अपना जो अटैक हो जाता है स्ट्रोक का, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ के लोगों में अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहती तो 75% लोगों में जो डायबिटीज़ के होते हैं उनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती हैं, और ऐसे लोगों को ही एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती तो 30 से 40% लोगों के अंदर गुर्दे की खराबी हो जाती है, और मोस्ट जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं अस्पतालों में जाते हैं गुर्दे की बीमारी से, जिनका डायलिसिस हो रहा होता है या अपना रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, ये वही लोग हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ होती है। सो 30 से 40% लोगों के अंदर गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। 60 से 65% लोगों के अंदर डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे मरीज़ कहते हैं मैं रात को सो नहीं सकता, मेरे पैरों में इतनी जलन होती है, मेरा जूता निकल जाता है, मैं चलता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं गद्दे पे चल रहा हूँ। कई बार वो कहते हैं जब मैं चलता हूँ तो मेरे को जो है जूता पहन के ही सो जाता हूँ, और कई बार उनको ऐसे लगता है कि वो जो है मैं पैर मेरे गीले हैं, मैं गीले फर्श पे चल रहा हूँ, पैर को ढक नहीं सकते हैं। ये सब जो है संवेदना ख़त्म हो जाने की वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है, और उसी की वजह से खास करके अगर हम आज बात करें, अब जो विंटर आ रही है तो जब संवेदना नहीं होती तो आप क्या करते हैं, अलाव के बिल्कुल पास में, हीटर के बिल्कुल पास में चले जाते हैं।
संवेदना नहीं है, वो पैर जल जाता है, 3 दिन बाद पता लगता है कि वहाँ फफोले पड़ गए हैं। ऐसे ही जब नहाते हैं तो ऊपर से गर्म पानी डाल लेते हैं पैरों के ऊपर, उस समय पता नहीं लगता, 3 दिन बाद पता लगता है कि ये तो पैर में जो है ब्लिस्टर्स हो गए हैं, वो गर्म पानी से जलने की वजह से। तो इसीलिए ये जो न्यूरोपैथी है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर दांतों की खराबी, फ्रोजन शोल्डर और जो है 30 से 35% लोगों के अंदर नपुंसकता भी हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि डायबिटीज़ की सभी जटिलताओं से बचा जा सकता है। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो एक भी जटिलता नहीं होगी। तो इसीलिए आप सबको अपना ध्यान रखना चाहिए और शुगर को नियंत्रण में रखना चाहिए। ऑल राइट, आई एम श्योर सर, ये सुनकर हर पेशेंट जो है वो, या जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं जिनमें, वो इलाज को एक सीरियस थॉट देंगे और वो डॉक्टर से मिलेंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि कुछ पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ है उनको रात को पसीना बहुत आता है और दिन में बहुत डिज़ी फील करते हैं। इसका क्या कारण है और ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? ये एक्चुअली क्या, हम लोग हमेशा अभी तक जो बात कर रहे थे हाई ब्लड शुगर की बात कर रहे थे। एक डायबिटीज़ के मरीज़ों की लाइफ में हमेशा एक ऐसी स्थिति भी आती है जिसको हम लोग कहते हैं लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया। तो जब आपका ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम से कम हो जाता है तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जो आधी रात को अगर किसी पेशेंट्स के अंदर स्वेटिंग होती है तो उसका कारण ये हो सकता है कि उसके अंदर शुगर की मात्रा कम हो गई हो और उसी की वजह से उनको जो है पाल्पिटेशन, घबराहट और स्वेटिंग होती है। एक दूसरी स्थिति, जैसा आपने कहा, अगर दिन के टाइम में डिजीनेस है तो शुगर के लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, बहुत फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तब भी ऐसी स्थिति आ सकती है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ को ये देखते रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत ब्लड शुगर जांच कर लेनी चाहिए और अगर शुगर लो है तो उस समय तुरंत जो है अपना ग्लूकोज या कोई ऐसी चीज़ खा लेनी चाहिए कि जिससे शुगर नॉर्मल में आ जाए। मतलब उनको ये प्रयास करना चाहिए कि शुगर की मात्रा कभी भी 70 मिलीग्राम से नीचे ना आए और उसको ही हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। मेरा अगला सवाल है ट्रीटमेंट के बारे में सर। इसका डायबिटीज़ का क्या क्या इलाज है और क्या दवाई उपलब्ध है और क्या उन दवाइयों का और इंसुलिन का कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है? डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर सबसे पहले हम लोग उनको यही कहते हैं कि आप अपना जीवन शैली बदल लें, अपना रेगुलर व्यायाम करें, अपना खान पान पे अपना पूरा ध्यान रखें। अगर ये दोनों प्रयासों के बावजूद भी अगर शुगर नॉर्मल में नहीं है तो उनको फिर हम कहते हैं कि आप डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन्स लीजिएगा। डिफरेंट तरह की मेडिसिन्स आती हैं, हर व्यक्ति को देख के उसके लिए दवाई लिखी जाती है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है, एक ही तरह का ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं हो सकता। कोई आदमी जो फैट है, ओवरवेट है, उसके लिए अलग रहेगा, जो पतला है उसके लिए अलग होगा, उसकी कार्यशैली कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। बट डिफरेंट बीमारियों मतलब स्टेजेस के लिए इसकी चूँकि पैथोलॉजी या इसका मैकेनिज़्म अलग अलग हैं, तो आजकल कई तरह की दवाइयाँ आती हैं जो डिफरेंट जगहों पे काम करके और शुगर को कंट्रोल में करती हैं। हर डायबिटीज़ की दवाई का अपना अलग जो है काम करने का तरीका रहता है। कोई वज़न कम करेगी, कोई जो है शुगर को मात्रा को नीचे रखेगी, कई दवाइयाँ जो हैं वो आप इंसुलिन के रेसिस्टेंस को कम करेंगी। तो इस तरह से अलग अलग दवाइयाँ हैं और हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, वो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो शुगर को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती हैं तो वो पेशाब की जगह पे ख़ारिश कर सकती हैं। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको खाने से पेट में गैस बन सकती है। तो ये सारी समस्याएं आप डॉक्टर के साथ जब बैठ के बात करते हैं तो उनके हल हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। एक बार शुरू हुई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शुरू में आपको 2 दवाइयों से काम हो रहा था, फिर 3 टेबलेट हो गई, फिर 4 भी हो गई। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब जो है आपकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, उस समय आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले लें। इंसुलिन लेने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि एक ये विकल्प नहीं है। आप अगर एक सीधे एक तरीके से देखिए, एक पेन है उसके अंदर रीफिल होता है। जब डायबिटीज़ का पता लगता है तो वो रीफिल 50% रह जाता है। हर साल ये कम होते जाता है। एक स्टेज के बाद ये गोलियां काम नहीं करती हैं, आपकी शुगर ज़्यादा रहती है, आपकी 3 महीने की HbA1c ज़्यादा रहती है, तब आपको डॉक्टर कहता है इंसुलिन लगाएं।
इंसुलिन लगाने से क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है, आपको जो है जटिलताएँ बढ़ने की समस्या जो है वो कम हो जाती है, और बहुत सारे जो रोज़ आपको जो दिक्कतें आती हैं उनसे बहुत अच्छा मिल जाता है। और इसके लिए इंसुलिन से डरना नहीं चाहिए। जब आपको डॉक्टर कहता है इंसुलिन लगानी है तो वो उससे विकल्प नहीं है, बल्कि उससे आपका जीवन अच्छा भी होगा और लंबा भी होगा। और इसीलिए कभी डायबिटीज़ के मरीज़ों को इंसुलिन के इंजेक्शन से डरना भी नहीं चाहिए और डॉक्टर की सलाह मान लेनी चाहिए। थैंक यू सर। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये एक पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और इसको बहुत ही सावधानी से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा अगला सवाल है सर कि अगर किसी पेशेंट को हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत पहले से ही है, तो क्या उसको डायबिटीज़ अलग तरह से अफेक्ट करती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं एक बार बात करना चाहता था बैड कंपेनियंस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के मरीजों के साथ एक हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई कोलेस्ट्रॉल और ओवरवेट, ये तीनों चीज़ बैड कंपेनियंस हैं। और जिन लोगों में ऑलरेडी, क्योंकि ये मान के जाता है कि डायबिटीज़ इज़ ए हार्ट डिजीज़, अब तो ये कहते हैं डायबिटीज़ इज़ सिनोनिमस टू दी कार्डियक डिजीज़। जिसको डायबिटीज़ है उसको हार्ट की प्रॉब्लम ऐसा माना जाता है कि होती ही है या होगी। तो इसीलिए उन लोगों के अंदर ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कहते हैं वो ज़्यादा है, तो उनको दवाई लेके इसको कंट्रोल में करना चाहिए। और इसके लिए चाहे वो डायबिटीज़ के लिए अपनी गोलियां खाएं, उसके साथ साथ अपने कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की भी दवा खाएं, साथ में अपना डाइट को भी मॉडिफाई करें। क्योंकि लोगों के अंदर एक देखिए बहुत सारा ये रहता है कि मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊं तो उससे, या मैं अगर ये और चीज़ें खाऊं तो उससे मेरा कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं जाएगा। जबकि सत्य यह है कि अगर आप 8 से 10 बादाम और 2 अखरोट लेते हैं तो इससे आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो नीचे आता है। तो ये अच्छी चीज़ है और इसीलिए इनमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और इसके साथ में जो है ये हेल्प करता है डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर। थैंक यू सर। और क्योंकि अब हम इस सेशन के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, क्या आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम ये है कि एक्सेस टू द डायबिटीज़ केयर, हर डायबिटीज़ के मरीज़ को डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, जांच कराने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सभी सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए, नंबर 1। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डायबिटीज़ जो है जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। मैं हर एक से कहता हूँ कि चेंज योर लाइफस्टाइल बिफोर डायबिटीज़ चेंजेस यू, एंड लूज़ वेट, गेन लाइफ, ईट राइट एंड एक्सरसाइज। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो दुनिया में डायबिटीज़ के वो मरीज़ भी हैं जो 90-90 साल तक जी रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप भी उसी श्रेणी में आ सकते हैं। सो विद दिस होप वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. Thank you so much for your time and the insight that you shared with us. Thank you very much. Thank you, audience. I'm sure ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। हम फिर मिलेंगे एक और फेसबुक लाइव सेशन में। थैंक यू।